Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will do the part 3rd of components of food where we will discuss about the balanced diet. Balanced diet means a diet should have all the nutrients that are needed by our body in a right quantity. So how the nutrients will be present? The nutrients will be present in the right quantity, not too less as well as not too much. The diet should have a good amount of roughage as well as the water. That diet is known as the balanced diet. So balanced diet is the one which have all the nutrients. सभी nutrients होने चाहिए such as carbohydrates, protein, fats, vitamins, minerals, roughage as well as the water. So all the nutrients should be in the proper amount. It should not less as well as it should not more present in it that are required by our body for its proper functioning, because these nutrients will help our body to do the proper functioning. So this kind of a diet is known as the balanced diet. अगर आप लोग अपनी डाइट को एज अ बैलेंस डाइट बनाना चाहते हैं देन यू शुड हैव some of these sources such as pulses, groundnut, soya bean, spinach, sprouted seeds, fermented food, banana, jaggery, vegetables, fruits, etc. in your diet to have a proper amount of nutrients. Eating the right kind of food is not enough. So हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. The first one is that removing the skins of vegetables as well as the fruits may result in the loss of some vitamins. जब हम किसी भी चीज़, किसी फ्रूट्स की या किसी वेजिटेबल्स की स्किन को रिमूव करते हैं and then we will wash, then many of the vitamins we will lose and which is not good for our health. Repeated washing, जब हम राइस, पल्सेस को रिपीटेडली वॉश करते हैं देन वी विल लूज सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन इट विच इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग. कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. कुकिंग करते समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कुकिंग प्रॉपरली करें, अदरवाइज वी विल लूज मैनी न्यूट्रिएंट्स. Many useful proteins and considerably amount of minerals are lost if excess water is used during cooking. So हमें excess water use नहीं करना है during cooking, otherwise we will lose proteins as well as minerals. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. So vitamin C बहुत जल्दी during heating डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो हमें विटामिन सी वाली यानी खट्टी चीज़ों को अवॉइड करना है कि हम उन्हें जितना हीट से दूर रख सके. Obesity is a kind of disorder where the excessive fat is increased in our body and the increases of excessive fat will increases the risk of a health problems. So जब हम बहुत ही ज़्यादा तला फला खाते हैं, फ्राइड खाते हैं लाइक समोसा, पूरी, मीठी चीज़ें खाते हैं, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब चीज़ें हम कंटिन्यूसली बार बार अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं जिसकी वजह से एक्सेसिव बॉडी फैट हमारी बॉडी में जमा हो जाता है और उस एक्सेसिव बॉडी फैट को हम कहते हैं ओबेसिटी. ओबेसिटी एक काइंड ऑफ डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ प्रॉब्लम रिस्की हो जाती है. सो ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड. जब बहुत ही ज़्यादा फैट रिच फूड एज वेल एज द मीठा हम लोग अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं देन वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी. ओबेसिटी मीन्स इन सिंपल वर्ड्स मोटापा. Deficiency diseases. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not be contain a particular nutrients. So if this situation continues over a long period of time, then the person may be suffer from its deficiency. मतलब अगर एक पर्सन अपनी डाइट में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को लंबे टाइम के लिए इन्वॉल्व नहीं करता है या फिर कंज्यूम नहीं करता है तो उस पर्सन की बॉडी में उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी विच इज़ नोन एज डेफिशिएंसी. और उस डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ जनरेट होगी विच इज़ नोन एज द डेफिशिएंसी डिजीजेज. Deficiency of one or more nutrient can cause diseases or disorders in our body.
Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called deficiency diseases. Let's see some examples. फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ प्रोटीन. अगर आपकी बॉडी में लंबे टाइम तक प्रोटीन की कमी हो जाती है देन यू विल गेट सम डिजीजेज. सो सच एज आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, समटाइम्स आपका फेस स्वेल हो जाएगा, आपके हेयर्स का कलर चेंज हो सकता है, सच जैसे ब्लैक से ग्रे में चेंज हो गया, ब्लैक से वाइट में आपके हेयर्स चेंज हो जाते हैं. स्किन डिजीजेज यू कैन गेट, डायरिया जैसी हमें बीमारियां हो सकती हैं. सो प्रोटीन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी. सो कोशिश कीजिए आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन लें ताकि आप इन सभी बीमारियों से बच सकें. नेक्स्ट वी हैव लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स की कमी हो जाती है देन द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली. तो आपकी ग्रोथ कम्प्लीटली स्टॉप हो सकती है, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आपका माइंड डेवलप होना प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. सो ट्राई टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अ प्रॉपर अमाउंट. नेक्स्ट, lack of different vitamins as well as minerals may also result in many diseases. Let's discuss some of the diseases which will take place due to the deficiency of vitamins as well as minerals, as well as the disorder and the symptoms of that particular disease. If we have a lack of vitamin A in our body, so हमें कौन सा disorder हो सकता है? Loss of vision. Symptoms हैं पुअर विजन हो सकता है, समटाइम्स वी कैन गेट अ लॉस ऑफ विजन्स इन डार्कनेस, अंधेरे में ही सिर्फ दिखना बंद हो, और कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है. नेक्स्ट, विटामिन B1 की कमी से वी कैन गेट अ बेरी बेरी डिसऑर्डर, और बेरी बेरी डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. जब हमारी बॉडी में विटामिन B की कमी होती है तो हमारे पास बहुत कम एनर्जी होती है, वी ऑलवेज फील टायर्ड टू डू द वर्क. हमारी मसल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती हैं क्योंकि वो वीक होंगी तो फंक्शन नहीं कर पाएंगी. नेक्स्ट वी हैव विटामिन C. विटामिन C का जो डिसऑर्डर है दैट इज़ स्कर्वी. स्कर्वी का जो सिम्टम्स है दैट इज़ ब्लीडिंग गम्स, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील. आपको चोट लग जाती है और चोट जल्दी से ठीक नहीं होती है, महीनों महीनों 2-2 महीने लग जाते हैं एक छोटी सी चोट को ठीक होने में. दैट मीन्स दैट यू हैव अ लैक ऑफ विटामिन C in your body and you are getting a disorder known as scurvy. विटामिन D की वजह से जो हमें डिसऑर्डर होता है दैट इज़ रिकेट्स, मीन्स द बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट. हमारी जो बोन्स हैं वो प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं. दैट मीन्स दैट आपकी बॉडी में विटामिन D की कमी है. सो विटामिन D के लिए आपको क्या करना है? दैट यू हैव टू टेक अ प्रॉपर सनलाइट. नेक्स्ट वी हैव कैल्शियम. कैल्शियम की वजह से वी गेट बोन एंड टूथ डिके. बोन एंड टूथ डिके के जो सिम्टम्स हैं दैट इज़ वीक बोन्स हो जाएंगी, टूथ डिके वी विल गेट. सो आपको कैल्शियम रिच डाइट लेनी ज़रूरी है. नेक्स्ट वी हैव आयोडीन. आयोडीन इज़ अ काइंड ऑफ मिनरल वेयर वी विल गेट अ डिसऑर्डर कॉल्ड गॉइटर. गॉइटर से जो सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं दैट ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलो. आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा हमारा गला सूजा सूजा फील होता है या फिर स्वेलो हो गया है, कुछ बाहर की तरफ थ्रोट में निकल के आ गया है. मेंटल डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं चिल्ड्रंस में. तो कोशिश कीजिए कि आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयोडीन अपनी डाइट में इंक्लूड करें. नेक्स्ट वी हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. आप लोगों ने आयरन की डेफिशिएंसी तो मैक्सिमम ने नोटिस की होगी. जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर कहता है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई है, दैट मीन दैट यू हैव अ डिसऑर्डर कॉल्ड एनीमिया. एनीमिया से आपकी बॉडी में हमेशा आपको वीकनेस फील करते रहते हो आप बार बार वीकनेस को. सो कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आयरन रिच डाइट लीजिए ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, आपको वीकनेस फील ना हो. सो अब इतनी सारी डिजीज़ हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स की वजह से मिलती हैं, और अब इन सभी डिजीज़ को क्योर कैसे कर सकते हैं? दैट वी हैव ओनली वन सॉल्यूशन टू क्योर ऑल दीज डिजीज़, दैट वी शुड हैव अ बैलेंस डाइट. और बैलेंस डाइट में क्या क्या होनी चाहिए? दैट वी शुड हैव अ बैलेंस डाइट विच शुड हैव कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स,
fats, vitamins, minerals, roughage, as well as proper amount of water. So all the deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. So eat healthy, stay healthy. If you like the video, please do like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Science Learning. Thank you for watching.